السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا اور رائٹر کا نام بھی آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ تو بنا وقت ضائع کے ہم ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر کلثوم بیگم نے سکون کا سانس لیا کہ شاید ان کی بیٹی وہ بات مان کر آج کچن میں چلی گئی ہو، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ جبھی دور ہوگی جب کچن میں داخل ہوتے ان کی نظر کام کرتی زویا پہ پڑی تھی۔ زویا بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج روٹیاں ماہنور بنائے گی، کلثوم بیگم نے روٹیاں بناتی زویا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تائی امی آپ جانتی ہیں اسے روٹیاں بنانی نہیں آتی، یہ زویا نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ یہ اچھا طریقہ ہے، اس طرح تو اسے کوئی کام نہیں آئے گا، بڑی ہے وہ تم سے اور کام کچھ آتا نہیں ہے، بس ہر وقت فیشن کروا لو۔ کلثوم بیگم نے غصے میں اپنی بات کہی۔ تائی امی یہ تو کام ہوتے ہی رہتے ہیں، اسے انجوائے کرنے دے زندگی۔ زویا ہر وقت اس کی حمایت مت کیا کرو، وہ بڑی ہے تم سے، اسے تھوڑی گھرداری سیکھنے دو، کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے۔ زویا مجھے چائے۔ کچن میں آتی ماہنور کے الفاظ اپنی ماں کو دیکھ کر وہیں رک گئے تھے۔ ہاں ماں کو چائے ملازمہ ہے نا تمہارے، خود تو کچھ آتا نہیں ہے، بس اس پر حکم چلاتی رہتی ہو۔ کلثوم بیگم نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بس کر دو ماما، ہر وقت میرے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں آپ، روٹیاں بنانے کا تمہیں کہا تھا نا۔ مجھے نہیں آتی، ماہنور نے ناک منہ بنا کر کہا تھا۔ تو جب سیکھو گی نہیں آئیں گی کیسے؟ یہ جو ہر کام تم زویا پر ڈال دیتی ہو نا، مجھے نہیں پسند، خود بھی کچھ کر لیا کرو۔ میں نے نہیں کہا تھا، خود آئی تھی یہ کہ لا دو میں بنا دوں گی، بتاؤ نا تم کیوں منہ سے سیکھ کر کھڑی ہوئی ہو؟ ماہنور نے خاموش کھڑی زویا کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ جی تائی امی میں نہیں کہا تھا، زویا نے نظر جھکا کر کہا۔ اگر اس نے بنانے کا کہا بھی تھا تو تم منع کر دیتی۔ کلثوم بیگم کی تو توبہ کا رخ زویا کی بات سن کر دوبارہ سے ماہنور کی طرف جا چکا تھا، جسے سن کر غصے سے زویا کو گھور کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیٹا تمہیں تمہاری ماما بلا رہی ہیں، جاؤ۔ کلثوم بیگم نے پیار سے اس کا گال تبکتے ہوئے کہا تھا۔ بس یہ 2 روٹیاں رہ گئی ہیں، میں بنا دوں؟ چھوڑو میں بنا دوں گی، کلثوم بیگم نے بیلن اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ لیکن بس جاؤ، کلثوم بیگم نے زویا کی بات کاٹ کر تھوڑا سختی سے کہا، جس پر اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ ماہنور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جس کا اسے بخوبی اندازہ تھا، اور وہ اپنی اس خوبصورتی کو سنوارنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے اور ٹریٹمنٹ اپنے اوپر کرتی رہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی اپنے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتی تھی۔ اسے پارٹی میں جانا پسند تھا، لیکن اسے صرف یونیورسٹی جانے کی اجازت تھی۔ اسے جینس اور شرٹ پہننا پسند تھا، جو کہ اس کے گھر میں اس کی امی پہننے نہیں دیتی تھی۔ اس کے برعکس اس سے 8 مہینے چھوٹی زویا مختلف تھی۔ اس سے BSc کیا ہوا تھا اور گھر کے کام میں وہ اول نمبر پر پائی جاتی تھی۔ وہ ایک سانولی رنگت والی صاف دل کی پرکشش لڑکی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں میں ماہنور ہی زیادہ اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، یہی بات اسے مغرور بناتی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ کر تو پڑھ لو، سمن بیگم نے اسے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں خالہ، ہو گیا ہے، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ فارس جلدی جلدی کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا جب شاہد صاحب نے سختی سے اسے کہتے ہوئے واپس بٹھا دیا تھا۔ بیٹا فارس، ناشتہ ختم کرو پھر چلے جانا، بلا وجہ نوکری کا جھنجٹ پا رکھا ہے، اپنا کاروبار ہے اسے سنبھالو۔ شاہد صاحب کہتے ہوئے اسے اپنا ناشتہ کرنے لگے تھے۔ بتاؤ جاب کیسے جا رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو ہے تو مجھے بتا دو۔ ضرور انکل، اور جاب بہت اچھی جا رہی ہے۔ فارس جلدی جلدی اپنا ناشتہ کر کے ان دونوں کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ خدا کامیاب کرے۔ اس کے جانے کے بعد شاہد صاحب نے آہستہ سے کہا، اور ان کی بات سن کر سمن بیگم نے دل میں آمین کہا تھا۔ شاید وہ کل ارحام آ رہا ہے، سمن بیگم نے جھجکتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا تھا۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے، یا پھر وہ کون سا پڑھائی کی وجہ سے ملے کاروبار کی وجہ سے باہر گیا تھا؟ وہ تو ہر مہینے 2 مہینے بعد ایسے ہی گھومنے جاتا ہے۔ شاہد ابھی بچہ ہے، اور پھر یہی تو گھومنے پھرنے کے دن ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، فارس بھی اس کے ساتھ کا ہی ہے۔ وہ تو ایسا نہیں ہے شاہد، آپ بھی جانتے ہیں کہ فارس کو ایسا پسند نہیں، وہ زندگی میں اپنی محنت سے کچھ بننا چاہتا ہے۔ خدا سے کامیاب کرو۔ اب ارحام کے بارے میں مجھے کچھ نہیں سننا۔ شاہد صاحب اپنی بات مکمل کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سمن بیگم کی بہن اور بہنوئی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے اپنے ننھے فارس کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد سمن بیگم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئی۔ ارحام اپنی زندگی کو انجوائے کرنے والا شخص تھا، وہ دوست بھی اپنے جیسے ہی بناتا تھا۔ فارس بچپن سے ہی ایک ذمہ دار انسان تھا، اور اپنی پڑھائی مکمل ہوتے ہوئے شاہد صاحب کے بے حد اسٹارٹ پر بھی ان کا کاروبار سنبھالنے کے بجائے جاب کر رہا تھا۔ ارحام کو ہمیشہ اس کی مثالیں دی جاتی تھی، اس کی قابلیت کی مثالیں دی جاتی تھی، اس لیے ارحام چاہ کر بھی کبھی اس سے دوستی نہیں کر پایا تھا۔ اسے ہمیشہ فارس سے چڑ رہتی تھی، فارس بھی اس سے فاصلے پر ہی رہتا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ سمن بیگم نے ارحام کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل ٹھیک ماما، آپ کیسی ہیں بتائیں؟ اور پاپا کہاں ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے پاپا اسٹڈی میں ہیں، جاؤ مل لو۔ میرا موڈ اس وقت بہت اچھا ہے، مجھے خراب نہیں کرنا، تو بعد میں ملتے ہیں۔ ارحام نے منہ بنا کر کہا۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے، ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی ہے انہوں نے۔ سمن بیگم نے اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں، ہمیشہ اس دوکھڑے کے فارس کو مجھ پر فوقیت دی ہے۔ ارحام تم بس ماما۔ اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے سمن بیگم کو مزید بولنے سے روکا تھا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔
आगे आपका लाडला शाही साहब ने अखबार पढ़ते हुए अपनी बेगम से पूछा था, जी इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि बाप से मिले, पर ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा था कहता बाद में मिल लूँगा, अभी थका हुआ हूँ, बस कर दो समझ, जैसे मैं तो जानता ही नहीं हूँ। शाही साहब ने गुस्से से अखबार मेज़ पर रखा था। छोड़े इन बातों को, वो कल सारा की शादी में जाना है। हाँ याद है मुझे, कल जल्दी आ जाऊँगा। और अपने बेटे को समझा दो कि अभी आवारागर्दी घूमना फिरना बंद कर दे, मेरे साथ काम में हाथ बटाए। शाही साहब गुस्से से कहते उठ खड़े हुए थे। ज़ोया मेरे लिए नाश्ता बना दो। महानूर ने अपना सामान निकालते हुए ज़ोया से कहा था, 5 मिनट में बना दूंगी। ज़ोया ने मसरूफ से अंदाज में कहा, ये सामान किस लिए निकाल रही हो? वो आज सारा आपी की शादी है तो इसकी तैयारी है। कौन सारा? वो मेरी दोस्त बिस्मा की बहन। अच्छा वो तो बहुत अमीर है ना? हाँ वो तो है, मैं भी चलूंगी। महानूर ने जोर से इसे देखते हुए कहा था, लेकिन तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? अगर तुम्हें लेकर नहीं जाना तो वैसे ही मना कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम तैयारी कर लो अपनी। ज़ोया ने शर्मिंदा कहा था, ठीक है मैं भी अपना सूट लेकर आती हूँ, तुम इस्त्री कर देना। महानूर जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागी थी। इसके जाने के बाद ज़ोया ने गहरा सांस हवा में छोड़ा था। उसे हर जगह जाना होता था जहाँ ज़ोया जाती थी, ये दिखाने के लिए कि वो ज़ोया से ज़्यादा हसीन है और ज़ोया इसके आगे कुछ भी नहीं है। और आज भी वो इसीलिए जा रही थी, लेकिन किसी इन सब बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हेलो मिस अरहाम ने इस लड़की की पूछ को देखते हुए पुकारा था, जो कि इसके पुकारने पर चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी थी। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही अरहाम इसकी खूबसूरती में खो चुका था। सफ़ेद रंग पर सिल्वर कलर की शॉर्ट फ्रॉक खूब जच रही थी। मेकअप और खुले बाल इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। क्या आपने मुझे कुछ कहा? महानूर ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी आवाज़ सुनकर खामोश के दरने में वापस लौटा था। हाँ वो मैं आप अब वो क्या ये आपका है? अरहाम ने अपने हाथ में जो सिल्वर कलर का इयररिंग इसके सामने करते हुए कहा, वो महानूर का ही था। जी शुक्रिया। महानूर ने वो इयररिंग इसके हाथ से लेते हुए कहा, वैसे क्या इस खूबसूरत दुशीज़ा का नाम जान सकता हूँ? अरहम की बात पर महानूर खिलखिलाकर हंसते हुए अपना नाम बताने लगी थी। यार तो उसे क्यों लाई है? बिस्मा ने ज़ोया से कहा, अपनी नज़रें दूर कर खड़ी अरहाम से बातें करती महानूर पर थी। वो आना चाह रही थी, मैं मना नहीं कर सकती थी। अच्छा छोड़ो, वो मैं मामा का मोबाइल प्लाटर रूम में भूल गई, तो तुम ला दो। बिस्मा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। ठीक है मैं ला देती हूँ। ज़ोया मुस्कुराकर उठी थी, स्टेज से उतरने लगी। जब स्टेज पर चढ़ती एक औरत का पाँव मोड़ा था, लेकिन इससे पहले वो गिरती ज़ोया ने संभाल चुकी थी। आप ठीक है? ज़ोया ने फिक्रमंदी से समन बेगम को देखते हुए कहा था। तकलीफ से तासुरात इनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। ज़ोया के पास उनका अपना सर नफी में हिलाने लगी थी। इनका हाथ थामकर ज़ोया ने प्राइवेट रूम में लेके थी, जहाँ चंद लड़कियां अपनी सेल्फी बना रही थी। ज़ोया ने वहाँ रखी एक कुर्सी पर बिठाया, वो झुककर इनके पाँव का मुआयना करने लगी। चोट नहीं आई? ज़ोया आस्ता आस्ता इनके पाँव पर अपने हाथों से मसाज करने लगी थी। अब ठीक है? ज़ोया ने मुस्कुराते हुए इन्हें देखकर पूछा। समन बेगम ने अपने पैरों को हरकत दी। तकलीफ थी लेकिन बहुत कम। हाँ बेहतर है, लेकिन तुम उठो बेटा यहाँ से। समन बेगम ने इसे ज़मीन से उठाते हुए कहा था। तुमने ऐसा क्या किया जिससे मेरा दर्द खत्म हो गया? मसाज किया था, मेरी खाला अम्मी ने ये तरीका बताया था। अच्छा। समन बेगम ने मुस्कुराते हुए इस प्यारी सी लड़की को देखा। नाम क्या है तुम्हारा? ज़ोया। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। समन बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जबकि सारा बिस्मा की बहन प्राइवेट रूम में दाखिल हुई थी। ज़ोया तुम्हें बिस्मा बुला रही है। सारा के पास पर ज़ोया ने उसे अपने सर पर हाथ मारा था। मैं मोबाइल ले जाना भूल गई। ज़ोया ने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया, समन बेगम को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वहाँ से चली गई। शाहिद आपसे कुछ बात करनी है। समन बेगम काम में मसरूफ है। शाहिद साहब को देखते हुए बोली थी, जिस पर उन्होंने अपने झुके हुए सर को हल्की सी जंबिश दी थी। कल शादी पर एक लड़की मिली थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। ज़ोया नाम था, बिस्मा की दोस्त है वो। मैंने बिस्मा से भी पूछा इसके बारे में, वो भी बहुत तारीफ़ें कर रही थी। और आपको पता है मेरा पैर मुड़ गया था, फिर किसी ने ही वो दर्द ठीक किया। तो मैं हैरान थी कि ऐसे मौका पर तो लड़की अपने कपड़ों पर एक शिकन तक नहीं आने देती। और वो बैठकर मेरा पैर देखने लगी। क्या कहना चाहती हो? समन शाह साहब ने इनकी लंबी चौड़ी गुफ्तगू को काटते हुए पूछा था। दरअसल मुझे वो बहुत अच्छी लगी है, उसे देखते ही मुझे पहला ख्याल अरहाम का ही आया है। क्या कहना चाहती हो? शाहिद साहब ने नासमझी से पूछा। तो मैं सोच रही हूँ कि अरहाम के लिए ज़ोया का हाथ मांगने जाऊँ। अच्छा तुम इतनी तारीफ़ कर रही हो इस लड़की की, तो ज़रा अपने बेटे को भी देख लो। कुछ कमाता तो है नहीं, सारा दिन घर से बाहर रहता है। हर महीने 2 महीने बाद इसे घूमने का शौक चढ़ जाता है। वो तो कुछ कमाता नहीं कि अपनी बीवी को कैसे पालेगा। शाहिद साहब तो जैसे इसकी बात पर फट पड़े थे। शाहिद साहब पर शादी होगी तो जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, तो खुद ही ठीक हो जाएगा। समन बेगम के कहने पर चंद पल सोच कर शाहिद साहब ने अपना सर इस बात में हिला दिया था। नूरीन बेगम और कुलसूम बेगम हैरत से समन बेगम की बात सुन रही थी, जो कि अपने बेटे के लिए इनकी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। नूरीन बेगम ने इनकी बात का जवाब दिया। जी ज़रूर, ये मेरे घर का नंबर है, आप मुझे अच्छे से सोचकर जवाब दे दीजिएगा। समन बेगम ने कार्ड इनकी तरफ बढ़ाया था, अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। नूरीन सोचना क्या है, इतने अच्छे घर के लोग हैं, सभी जानते हैं इनके बारे में, अच्छा कारोबार है, तो देर कैसी? समन बेगम के जाने के बाद कुलसूम बेगम ने नूरीन बेगम को देखते हुए पूछा था। बच्ची का मामला है भाभी, मालूमात तो करनी पड़ेगी ना। शाम को जब भाई और अमजद आएंगे तो इनसे इन बारे में बात करेंगे। नूरीन बेगम संजीदगी से कहती हुए अपनी जगह से उठी थी। कुलसूम बेगम को भी इनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। बात बच्ची की थी, मालूमात लेनी तो ज़रूरी थी।
ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے ماما؟ مہنور نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کس کی بات پر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کل ارحام اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکا تھا، وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ہر چند ماہ بعد وہ ورلڈ ٹور پر جاتا ہے۔ مہنور سے اس کا ایڈریس اور فون نمبر بھی لے کر جا چکا تھا تاکہ پھر ملاقات کے لیے اس سے رابطہ کر سکے۔ وہ اسے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی سمن بیگم کے بارے میں بھی بتا چکا تھا کہ اس کی والدہ ہیں۔ مہنور اتنی ناسمجھ بھی نہ تھی کہ اس کی نظروں میں یہ پیغام کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ پوری تقریب میں وہ جتنے وقت اس کے ساتھ رہا، اس کی تعریف کرتا رہا تھا اور اگلے ہی دن سمن بیگم کی موجودگی سے ہواؤں میں اڑا رہی تھی، لیکن اس کی خوش فہمی دور ہو گئی جب اسے پتہ چلا کہ وہ رشتہ زویا کے لیے آیا ہے۔ تب سے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ٹہری تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر زویا کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کلثوم بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، میرے ہوتے ہوئے کوئی زویا کے لیے رشتہ کیسے لا سکتا ہے، وہ بھی اتنی اچھی جگہ سے؟ اس کی بات پر کلثوم بیگم کو بہت غصہ آیا تھا۔ کیوں، تم کیا کہیں گی مہارانی ہو جو اچھے رشتے صرف تمہارے لیے آئیں کہ میں زویا سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جو عورت آج زویا کا رشتہ لائی تھی، کل اس کا بیٹا اس کی تعریف کرتے کرتے تھک نہیں رہا تھا۔ کیا برائی ہے زویا میں؟ اور ویسے بھی تم صرف خوبصورتی سے اپنے آپ کو سجا کر لوگوں کو متاثر کرتی ہو، لیکن زویا اپنے دل سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ہر وقت بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ کلثوم بیگم کی بات پر وہ غصے سے پیر پر رکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارحام بیٹا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جو باہر کی طرف جا رہا تھا، سمن بیگم کی آواز پر رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی کہیے ماما۔ ادھر بیٹھو۔ سمن بیگم نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کہیں۔ ارحام نے بزاری سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار اسے دیکھ لو۔ جب پسند کر ہی لیا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، رشتہ تو تمہاری مرضی سے ہی طے ہوگا، لیکن تم ایک بار دیکھو تو صحیح۔ سمن بیگم نے اپنا موبائل میں جو تصویر نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا، یہ بسمہ کی دوست ہے، میں نے یہ تصویر بھی اسی کی ہے۔ ارحام غور سے تصویر میں جو لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو مسکراتے ہوئے کہیں دیکھ رہی تھی، یہ وہ لڑکی ہے؟ ارحام نے سمن بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے جو سے سر ہلایا تھا۔ کم آن ماما، کم سے کم لڑکیاں تو میرے ٹائپ کی دکھنے میں کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ بیٹا بہت پیاری ہے دکھنے میں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تصویر میں اچھی نہیں لگ رہی ہو، لیکن اس سے زیادہ دل کی پیاری ہے۔ اور ڈیئر ماما، آپ اپنے اس صاف دل کی لڑکی کو اپنے صاف دل کے فارس کے لیے ہی رکھ دیجیے۔ میں اپنے لیے لڑکی کو دیکھ چکا ہوں، ڈرائیور کو کہہ دوں گا آپ اس کے گھر چھوڑ دیں۔ ارحام کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کر ہوا تھا جب سمن بیگم نے اس کا مردانہ ہاتھ تھام لیا تو کون ہے وہ؟ اور اگر پسند تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ میں نے سوچا کیا پتا وہ لڑکی جو آپ مجھے دکھا رہی ہیں میری والی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ارحام، خوبصورتی کے پیچھے مت بھاگو، یہ تو وقت کے ساتھ ڈھل جائے گی۔ ایک بار زویا سے ملو تو صحیح، اچھی بچی ہے، نیک سیرت والی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ارحام نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے آپ کو دکھاوے کے لیے اچھا ڈرامہ کر رہی ہو۔ ارحام، مجھے پہچان ہے کہ کون دکھاوا کر رہا ہے، کون دل سے کر رہا ہے۔ مجھے یہ سب نہیں سننا، آپ کو جب میری پسند کی لڑکی سے ملنا ہوگا تو بتا دیجیے گا، میں ڈرائیور کو ایڈریس دے دوں گا۔ ارحام کہتے ہوئے تیزی وہاں سے نکل گیا تھا۔ سمن بیگم نے اسے چند بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ایک ہی بات سن کر انہیں وہ بات ماننی پڑی تھی۔ لیکن اب انہیں فکر زویا کے گھر والوں کی تھی کہ انہیں کیا جواب دیں گی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ زویا کے گھر والوں سے وہ کوئی رابطہ نہیں کر رکھیں گی، اور اگر اس کی والدہ کا فون آیا تو وہ اٹھائیں گی نہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی، لیکن ضروری تو نہیں ہمیشہ جو سوچا جائے وہی ہو۔ ندیم بھائی، آپ غلط جگہ پر مجھے لے آئے ہیں، سمن بیگم نے حیرت سے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں باجی، ارحام بابا نے یہ ایڈریس دیا ہے۔ اس کی بات سن کر سمن بیگم کے اذان خطا ہو گئے تھے۔ زویا کو دیکھ کر وہ انکار کر چکا تھا، اور بچی مہنور، تو کیا ان کے بیٹے نے مہنور کو پسند کیا تھا؟ سمن بیگم ایڈریس ڈرائیور کے ہاتھ سے لے کر خود اسے دیکھنے لگی، اور ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کو کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن ایڈریس پر وہی جگہ کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھی، اس لیے واپس نہیں جا سکتی تھی، اور جو وہ سوچ رہی تھی کہ زویا کے گھر والوں سے اب کوئی سامنا نہیں ہوگا، وہ سوچ الٹی پڑ گئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کلثوم بیگم نے سمن بیگم کی بات پر حیرانگی سے کہا، جی میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی مہنور کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ سمن بیگم نے گلا کھنگھارتے ہوئے اپنی بات کا دوبارہ دہرائی تھی، جب آپ کو مہنور کے لیے ہی رشتہ لانا تھا تو آپ نے پہلے زویا کا نام کیوں لیا؟ کلثوم بیگم نے سخت لہجے میں اپنی بات کہی۔ ان کی بات سن کر سمن بیگم نے شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ بھابھی نورین بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں کچھ اور کہنے سے روکا تھا، اور سمن بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اب بتائیے، اگر آپ کو رشتہ مہنور کے لیے چاہیے تھا تو آپ نے زویا کا نام کیوں لیا؟ نورین بیگم نے نرمی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھیے، نہیں، میں مہنور کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لائی ہوں، لیکن میں زویا کا رشتہ بھی لائی تھی اپنے فارس کے لیے۔ سمن بیگم نے جلدی سے اپنی بات کہی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی انہیں خود بھی اندازہ نہ تھا، جبکہ اب کلثوم بیگم نورین بیگم انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے نا؟ کلثوم بیگم نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، وہ میری بہن کا بیٹا ہے۔ میری بہن اور بہنوئی کے انتقال کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی اچھی جاب ہے۔ میں زویا کے لیے اس کا ہی رشتہ لائی تھی۔ سمن بیگم نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کری اور اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر ان دونوں کو سوچ میں چھوڑ کر وہاں سے چل چکی تھی۔ جب سے مہنور کو یہ بات چلی تھی، وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اور زویا کو دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، جس کا رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اور میلا بھی، وہ جو مہینے کا 50,000 کما رہا تھا، بار بار طنز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ دیکھ لو تم کہاں۔ اور میں کہا، سب سے مشورہ کر کے لوگوں سے معلومات حاصل کر کے نورین بیگم سمن بیگم کو اپنے آنے کی اطلاع دے چکی تھی۔ وہ لڑکوں کو دیکھنے آنا چاہتی تھی۔
कलसूम बेगम को नौरीन बेगम से शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन जिस पर उन्होंने ये कह दिया कि इन्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है और हाँ महानूर के नसीब का था। और जहाँ तक बात है पैसों की, तो उनके नज़दीक पैसा आने और जाने वाली चीज़ है, आज है तो कल नहीं। अगर फास इन्हें अच्छा लगा तो वहाँ हाँ कर देंगी, बाद में खुदा इनकी बेटी के नसीब अच्छे करे। क्या मतलब? खाला जहान ने फारिस ने समन बेगम की बात पर हैरानगी से इन्हें देखते हुए पूछा था। फारिस बेटा, ज़ोया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन खाला जान मुझे अपना भी करियर बनाना है। मैं अभी इतना कमाता भी नहीं हूँ कि इस लड़की की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ फारिस, तुम हर किसी का हर तरह से ख्याल रखना जानते हो। मैं बस यही कहूँगी कि एक बार इस बारे में सोचना ज़रूर। जब भी फैसला हो मुझे रात तक बता देना। लेकिन ज़ोया बिल्कुल वैसी लड़की है जैसे तुम चाहते हो। जहाँ तक मैं इसे समझ पाई हूँ, इसे पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे जैसे तुम्हारी पूरी मर्जी। समन बेगम इसका कंधा थपथपा के उठकर चली गई थी, जबकि फारिस कितनी देर इनकी बातें सोचता रहा था। हाँ, ये सच था कि इसकी ख्वाहिश थी कि वो भी अपनी ज़िंदगी जिए। इसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वजूद हो जिसके लिए वो ख़ास हो, जो इसके लिए ख़ास हो। शायद साहब वो समन बेगम ने इसे हमेशा अपना बेटा समझा था, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो दिल से इसे मोहब्बत करे, इसका ख्याल रखे। लेकिन अगर वो ये फैसला कर भी ले, इसे इस बात की परवाह थी कि अगर इसकी तनख्वाह में इस लड़की की ज़रूरतें ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी तो फिर क्या होगा। बचपन से अरहाम ने हमेशा से हर तरह के ताने ही दिए थे। वो भी अपनी ज़िंदगी पुरसुकून होकर जीना चाहता था, अपना हर मामला अल्लाह पर छोड़कर फैसला कर चुका था। इन सबको फार्स और अरहाम पसंद आ चुके थे। कलसूम बेगम को भी फार्स बहुत अच्छा लगा था, तमीज़दार और सुलझा हुआ लड़का। इसी तरह चंद मुलाकातों के बाद घर की एक छोटी सी तकरीब में समन बेगम और ज़ोया महानूर को अंगूठी पहना चुकी थी और चंद माह बाद शादी का इरादा था। वो घर में अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जहेज़ की जो भी चीज़ आती वो दोनों की एक होती, और दूसरी तरफ समन बेगम भी ज़ोया और महानूर के लिए हर चीज़ एक जैसी ला रही थी। शायद साहब हर महीने ज़रूरत पड़ने पर इसे पैसे देते थे, लेकिन जब फार्स ने जॉब शुरू की तो वो इसके लाख पार कहने पर भी इनसे कुछ नहीं लेता था। अब इसे बचपन से पैसे जमा करने की आदत थी। वो अकेला था, इतनी ज़रूरतें इसकी थी नहीं, बाकी पैसे वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करता रहता था। ज़ोया के लिए ली हुई हर चीज़ के पैसे वो खुद देना चाहता था, लेकिन समन बेगम ने इसे मना कर चुकी थी। इनकी मना करने पर भी वो ज़बरदस्ती ने पैसे दे चुका था, जिस पर उन्होंने शायद साहब से कह दिया था कि शादी इनके दोनों बेटों की है तो वो इससे पैसे क्यों ले। और हाँ, महानूर को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन कुलसूम बेगम इसे माजूद कर चुकी थी, जिस पर अरहाम का मुँह बन गया था। लेकिन फ़ोन पर वो दोनों रोज़ बातें करते थे, जिसमें अरहाम या तो इसकी तारीफ करता या इसे अपनी बेकरारियाँ सुनाता, जिसे सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। जबकि दूसरी तरफ ज़ोया और फार्स की चंद भारी बातें हुई थी, जिसमें पहले पहले पहल तो फास ने ही की थी। वो इसे समझाना चाहता था कि इसे चंद बार बात करके वो ये अंदाज़ा लगा चुका था कि ज़ोया एक शर्मीली लड़की है। इसे इस बात करते हुए भी वो झिझकती है, इसलिए वो खुद ही से बात कम करता था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही पहली नज़र बेड पर बैठी महानूर पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुराते हुए दोबारा अपना सर झुका चुकी थी। अरहाम चलता हुआ बेड के करीब जाकर बैठ गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जानती हूँ, महानूर ने उतराते हुए कहा था, मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कैसा लग रहा हूँ मैं? ऐसा लग रहा है मिसेस अरहान बनकर। अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती कि मुझे मिसेस अरहान बनकर कैसा लग रहा है। महानूर ने मुंह बनाकर कहा। वो हसीन लड़की इस वक्त अरहान को मज़ीद हसीन लग रही थी। तुम जितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें गिफ्ट भी वैसा ही खूबसूरत मिलना चाहिए। गिफ्ट की बात सुनकर महानूर ने खुशगवार तासराते से देखा था। कहाँ है मेरा गिफ्ट? आवाज़ में बेचैनी थी। अरहान ने इसका हाथ थाम के इसे ड्रेसिंग मिरर के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बॉक्स खोलकर इसके सामने किया, जिसमें मौजूद डायमंड सेट देखकर इसकी आंखें फैल गई थी। ये मेरे लिए है? महानूर ने सेट को हाथ लगाते पूछा था। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब देकर अरहान इस हसीन नेकलेस को उसकी सफ़ेद गर्दन की जीना बनाकर मज़ीद हसीन बना चुका था। इट्स ब्यूटीफुल। महानूर ने इसकी गर्दन में मौजूद इस हसीन चीज़ को देखते हुए कहा था, जब अरहान ने इसके कमरे में हाथ डाल के इसे अपने करीब किया। इसके बेड पर बैठते ही ज़ोया खुद में सिमट कर थोड़ी पीछे हो चुकी थी और फास ये सोच रहा था कि वो इससे बात क्या करे, और करे भी तो शुरुआत कहाँ से करे। फास ने गला खंगालते हुए बात का आगाज़ किया था। कैसी हैं आप? फास ने इसे देखते हुए पूछा, जो अभी से सिर्फ सर को जन्बिश देकर जवाब दिया था। ज़ोया, मैं काम से ही जॉब करता हूँ, महीने का 50,000 कमाता हूँ। वालिदैन बचपन में ही छोड़कर जा चुके थे। मैं ज़्यादा किसी से इतना क्लोज भी नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक लड़की की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं और आपकी भी होंगी, जिन्हें मैं पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। कभी कोई शिकायत हो तो मुझसे कह सकती हैं आप। ज़ोया गुस्से से देख रही थी, जो नज़र झुकाए से अपनी बातें कह रहा था। फार्स से ज़ोया ने नरमी से इसे देखते हुए कहा। इसके पुकारने पर फार्स ने नज़र उठाकर इसे देखा था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, लेकिन ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हाँ, मेरे शौहर हैं, मेरा सब कुछ है। मैं आपसे ही शिकायतें या फरमाइश ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे खुशी सिर्फ पैसों या चीज़ों से मिलती है। मेरे नज़दीक रिश्ते ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसके बाद सुनकर फास के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ चुकी थी। इसकी लबरेती नज़रों से ज़ोया अपना सर झुका गई और इसकी इस अदा पर फार्स को मज़ीद दिल के करीब लगी थी। समन बेगम ने ज़ोया की तारीफ की बेहतरीन तारीफ़ें की थी और वो नहीं जानता था कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन आज इसे इनकी हर बात सही लग रही थी। फास ने इसका हाथ थाम कर इसे के हाथ के पूंछ पर अपने रख दिए थे। अपनी जगह से उठकर फास ने अलमारी से एक मखमल का बॉक्स निकाला, इसकी तरफ बढ़ाया था। ये मेरी तरफ से आपके लिए।
امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ زویا نے اس کا باکس کو کھول کر دیکھا جس میں سونے کے 4 چوڑیاں تھیں۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے دل سے تعریف کی تھی اور یہ میری خواہش۔ فارس نے ایک اور چیز نکال کر اس کے سامنے کی تھی۔ زویا نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ اس چیز کو دیکھتے زویا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے شریک حیات کے ساتھ سب سے پہلے عمرے پر جاؤں۔ اس کی بات سن کر زویا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ چکی تھی۔ فارس نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنے ہمسفر کے ساتھ شادی کے بعد فوراً عمرے یا حج پر جاؤں۔ زویا کی بات سن کر اس کے چہرے پر بھی گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ شکرانے کے سجدہ ادا کریں گی؟ فارس کی بات سن کر زویا نے اپنے سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ اپنی دعا سے فارغ ہو کر فارس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زویا آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر زویا کی نظر سب سے پہلے خود کو دیکھتے فارس پر پڑی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اپنی نگاہ جھکا کر زویا اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگی۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور عقیدت سے اس کے پیشانے پر لب رکھ دیے تھے۔ اجازت ہے؟ فارس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ زویا نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ سارے کام ملازم کرتے تھے لیکن کھانا بنانا، ملازموں کو دیکھنا، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام سمن بیگم کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سارا کام زویا اپنے سر پر لے چکی تھی۔ سمن بیگم نے اسے منع کرنا چاہا، یہ کہہ کر اب ان کی شادی کو دینی کہتے ہوئے، لیکن وہ پھر بھی ساری ذمہ داری اٹھا چکی تھی۔ گھر میں بھی تو فارغ رہ کر کوئی کتاب پڑھتی یا موبائل یوز کرتی تھی، اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دے۔ لیکن ماہنور یہاں آ کر بہت پرسکون تھی۔ پہلے سے جس چیز کی اجازت نہیں ملتی تھی ماہنور وہ سب یہاں آ کر سکتی تھی۔ پینٹ شرٹ پہننا، ہر وقت گھومنا پھرنا، ارحام اسے اپنے دوستوں سے ملواتا، پارٹی میں لے کر جاتا۔ اس کے سب دوستوں نے ہی ماہنور کی تعریف کی تھی، جس پر سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اس کا دوست زبیر تھا، اور ان کی تعریف سن کر ارحام کو اپنی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی یہاں یہ روٹین تھی جس سے وہ بہت خوش تھی، لیکن شاہد صاحب کو یہ پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے جس طرح زویا گھر کے کام کرتی ہے، ان سب کے ساتھ بیٹھتی ہے، ماہنور بھی اسی طرح کرے، لیکن ارحام انہیں صاف لفظوں میں بتا چکا تھا کہ وہ ماہنور پر کوئی چیز زبردستی مسلط نہیں کرے گا، یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ پھر دن گزرتے گئے اور گزرتے دنوں میں جو خوشخبری زویا نے سنا چکی تھی وہ سب کے لیے بہت بڑی تھی۔ پہلے ہی سب اسے پسند کرتے تھے، اسے اہمیت دیتے تھے، مگر اب وہ سب چیزیں مزید بڑھ چکی تھی۔ ہر کوئی اس کا خیال رکھ رہا تھا، اور پہلے تو سمن بیگم اور شاہد صاحب یہ کہتے تھے کہ ماہنور گھر میں رہے، ان کے ساتھ وقت گزارے۔ اب وہ یہ سب کہنا چھوڑ چکے تھے اور ماہنور کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اسے اگنور کرے ہیں۔ زویا کی وجہ سے اس نے ارحام سے یہی کہا تھا کہ گھر میں کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا جتنی زویا کو ملتی ہے، جس پر اس نے یہ کہا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارا کرو، ویسا کرو جیسا زویا کرتی ہے تو تمہیں بھی اتنی اہمیت ملے گی۔ لیکن یہ سب باتیں اسے بیکار سی لگ رہی تھی۔ پہلے ہی مشکل سے اسے اتنی اچھی اور کھلی زندگی ملی تھی، اور وہ یہ سب صرف اس لیے برباد نہیں کر سکتی تھی کہ اسے زویا سے زیادہ اہمیت ملے۔ اپنے آپ کو پرسکون کر کے وہ پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ارحام نے اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اسے بھی بیبی چاہیے تھا، ایک مکمل فیملی۔ پہلے تو اسے ارحام کی بات فضول لگی، لیکن بعد میں سے یہ بات بالکل صحیح لگی۔ اگر اس کے پاس بھی اولاد ہوگی تو سب گھر والے اس کے پاس ہی رہیں گے، اس کی جانب ہی متوجہ ہوں گے۔ ویسے بھی اس کی اولاد زیادہ اہمیت رکھے گی کیونکہ فارس کون سا ان کا سگا بیٹا ہے۔ اور پھر زندگی میں نئے دن شروع ہوئے تھے جب گھر میں ماہنور کی طرف سے خوشخبری ملی تھی۔ سب اس کا خیال رکھ رہے تھے، جن میں سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ارحام تھا۔ اور پھر گھر میں فارس اور زویا کی گڑیا کی آمد ہوئی جسے ہر کوئی پیار کر رہا تھا۔ ارحام کبھی بھی فارس سے نہیں بنتی تھی، لیکن یہ گلابی گالوں والی گڑیا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اسے صرف ایک ماہنور ہی تھی جس نے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس گڑیا کو نہیں دیکھا تھا، جس کا نام سب نے مل کر علی سے رکھا تھا۔ اسی طرح 1.5 مہینے بعد ماہنور کی گود میں ایک ننھا سا شہزادہ آیا جس کا نام سب نے مل کر ریان رکھا تھا، اور اب ماہنور کو ریان اپنی ایک غلطی لگ رہا تھا۔ ریان کی وجہ سے وہ گھر میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد یہ اس پکار سنائی دیتی، ریان کو بھوک لگی ہے، ریان کو نیند آ رہی ہے، ریان کے کپڑے بدل دو۔ تنگ آ کے اس نے ریان کو اپنے ساتھ رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے یا تو سمن بیگم سنبھالتی ہیں، زویا اپنی اس ذمہ داری سے جان چھٹکا کر وہ پھر اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی۔ دوستوں سے ملنا، گھومنا، پھر پارٹیز میں جانا۔ ارحام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ خود بھی ایسی زندگی جی رہا تھا۔ شاہد صاحب نہ جانے اس سے کتنی بار کہہ چکے تھے کہ وہ اپنا کاروبار سنبھالے، اور ان کے بار بار کہنے پر اگر کبھی اس کا موڈ بن جاتا تو چند گھنٹوں کے لیے وہ کام پر چلا جاتا، لیکن پھر اسے اس دن میں زندگی بدل چکی تھی جب سمن بیگم شاہد صاحب عمرے پر جا رہے تھے، لیکن پلین کریش ہونے کی وجہ سے وہ ان سب کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شاہد صاحب اور سمن بیگم کے جانے سے ہر کوئی اداس ہو چکا تھا۔ سب سے زیادہ ذمہ داری ارحام اور زویا پر آ چکی تھی۔ سمن بیگم اور زویا ساتھ مل کر گھر کے کام کرتی تھی، ان کے جانے پر ساری ذمہ داری زویا پر آ چکی تھی۔ دوسری طرف ارحام یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اپنے باپ کا کاروبار کیسے سنبھالے گا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن ایسے میں اس کی مدد شاہد صاحب کے ساتھ کام کرنے والا بندہ بشیر کر رہا تھا۔ ایسا اسے لگ رہا تھا کہ جبکہ بشیر جانتا تھا کہ ارحام کو اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ فارس کی جاب جا چکی تھی،
जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी कोई और खरीद चुका था और पुराने वर्कर्स को वो निकाल चुके थे। ऐसे में फारस अपनी जॉब की तलाश में ख्वार हो रहा था। काम पर जाने की वजह से इसे अब आराम जल्दी उठने लग गया था। जोया इसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी, इसे पूछकर इसकी पसंद का नाश्ता बनाती थी, जबकि इसकी बीवी हर चीज़ से बेनियाज कमरे में सोती रहती थी। वो देखता था कि जोया कैसे फारस का ख्याल रखती है, इसे बार बार से हर चीज़ देती है, अलीसे का ख्याल रखती है, इसे साफ सुथरा रखती है, यहाँ तक इसके बेटे का ख्याल भी जोया रखती है। जोया को और इसके सुखरापे को देखकर जैसे अपनी माँ याद आती है, जो इसकी शादी से पहले ही कहती थी कि जोया एक अच्छी लड़की है, लेकिन इसने महानूर को चुना। अपने जहन के हर ख्याल को जड़कर महानूर से बात करने का फैसला कर चुका था। क्या पता उसकी बात समझ आए। महानूर, मैं चाहता हूँ अब तुम घर के कामों में जोया का हाथ बटाया करो। अरहाम की बात पर महानूर ने मोबाइल से नजर हटाकर हैरत से अरहाम की तरफ देखा था, लेकिन किस लिए शुरू से ही वही तो करती आई है सारे काम। महानूर शाने पे न्याजी से कहती हुई दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई थी। पहले की बात और थी, महानूर पहले मामा और वो मिलकर करते थे, लेकिन वो अकेले सारा घर का काम करती है। रेहान को भी वही संभालती है, यहाँ तक कि मेरे हर चीज़ का ख्याल भी वही रखती है, और ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस बार अरहाम ने जरा सख्त लहजे में अपनी बात कही थी। अच्छा ठीक है, मैं कल से इसके साथ मिलकर करूँगी। महानूर के कहने पर पुरसकून होकर दोबारा अपने काम में लग चुका था, जबकि महानूर की सोच तो सिर्फ जोया की तरफ ही जा रही थी। घर में हर कोई इसे बात कहता था कि जोया की तरह बनो। यहाँ आकर भी सास ससुर वही बात कहते थे कि जोया की तरह बनो। और अब जब इनके बनने के बाद जिनकी थोड़ी सुकून में आई तो अरहाम भी वही बात लेकर आ गया था, जो हमेशा से दबा कर रख देती थी, लेकिन सोच रहा था वो अपनी ज़िंदगी में से जोया का किस्सा ही ख़त्म कर देगी। 3 दिन से महानूर जल्दी से उठ रही थी। खाना इसे बनाना नहीं आता, जिससे सब कुछ जोया भी बना रही थी, लेकिन अब अरहाम की हर चीज़ का ख्याल वही रख रही थी। सारा दिन रेहान जोया के पास ही रहता था, लेकिन अरहाम के आने से कुछ वक्त पहले वो रेहान को अपने पास रख लेती थी, और अरहाम को ये लग रहा था कि महानूर उसकी बात समझ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ महानूर तो अपनी भी प्लानिंग में लगी हुई थी। सर अरहाम को ये यकीन दिलाना था कि वो घर संभाल चुकी है, फिर इसे जोया को इस घर से निकालना था। अरहाम, एक बात कहूँ, महानूर ने अपने नरम हाथों पर लोशन लगाते हुए कहा था, जिस पर काम करते अरहाम ने मसरूफ अंदाज में सर हिलाया था। मुझे लगता है तुम्हें फारस से बात करनी चाहिए। महानूर की बात पर अरहाम ने नासमझी से सर उठाकर देखा था। किस बारे में? काम में इतना लॉस हो रहा है और फारस की भी जॉब नहीं है, ऐसे में तुम पर मजीद बोझ पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मामा पापा फारस को बहुत चाहते थे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी बात कहकर वो दोबारा काम में मसरूफ हो चुका था। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल को अगर कोई बात हुई तो मुझसे शिकायत मत करना। वैसे तो तुम पैसों का कारोबार कर रहे हो, लेकिन इन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़वाते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। वो जॉब ढूंढ रहा है, मिल जाएगी उसे। हमें क्या पता वो ढूंढ रहा है या हमें बेवकूफ़ बना रहा है। भला अगर मुफ्त में सब चीज़ें मिल रही हों तो कौन काम करना चाहता है। अपनी बात कहकर उठ खड़ी हुई वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उन्हें पता था कि अपनी बातों से अरहाम का ब्रेन वॉश कर चुकी है। फारस, मुझे तुमसे बात करनी है। अरहाम ने अपना गला खंगालते बात का आगाज़ किया। हाँ कहो। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द अपने लिए कोई घर देख लो। फारस अपना नाश्ता छोड़कर हैरत से देखा। इससे के देखने पर अरहाम ने दोबारा अपनी बात शुरू की थी। मुझे गलत मत समझना, तुम भी जानते हो महंगाई का दौर है और काम में मुझे मुसलसल नुकसान हो रहा है। ऐसे में मैं समझ सकता हूँ। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले फारस ने रोक दी थी। तुम फिक्र मत करो। अपनी बात कहकर अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल गया था। इसके जाने पर अरहाम भी अपना नाश्ता छोड़कर अपना सामान उठाकर बाहर की तरफ चल दिया। अरहाम भाई, जोया की बात पर अरहाम ने मुड़कर सवाली नजर से देखा था। वो आप अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी। अरहाम जानता था अंदर होने वाली बात के बारे में ही बात कहना चाहती है। जोया, मैं फारस को ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का वक्त ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। अपनी बात करके वो वहाँ से जा चुका था, जबकि जोया कितनी देर परेशानी से वहाँ खड़ी थी। इसे पता था कि फारस घर की बात को लेकर परेशान हो रहा है। इसके पास तो अभी जॉब भी नहीं है। जहन में ये ख्याल आ रहा था कि एक बार महानूर से बात कर लेनी चाहिए, क्या पता वही अरहाम को समझा दे। जोया, मेरे लिए कोई कॉफ़ी बना दो। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर महानूर ने जोया को देखते हुए कहा था, जो इस वक्त रात के खाने की तैयारी कर रही थी। महानूर, एक बात कहूँ। इसकी बात पर महानूर ने फ़खर सर को जंबिश दी थी। तुम्हें पता है ना कि फारस की जॉब जा चुकी है। तो महानूर ने अपने शाने चुकाए थे। तो प्लीज़ अरहाम भाई से बात करके देखो कि पहले ही वो इतने परेशान है, ऐसे में घर का मसला इन्हें मज़ीद परेशान कर देगा। देखो जोया, अरहाम से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी तुम भी जानती हो कि इनके काम में इतना लॉस हो रहा है। वो तो मुझे भी वैसे अब कम देने लगे हैं, और बाकी तो तुम भी खुद भी समझदार हो। काफ़ी मेरे कमरे में ले आना। अपनी बात कहकर महानूर वहाँ से जा चुकी थी, और जोया बस यही सोचती रहेगी कि काम में इतना लॉस होने के बावजूद भी महानूर की फजूल खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र फारस पर पड़ी, जो अलीज़े को अपनी गोद में बिठाकर इसके साथ खेल रहा था। जोया ने हैरत से देखा था। आप कब आए? बस 15 मिनट पहले। जॉब का क्या हुआ? जोया ने इसे देखते हुए पूछा। फारस ने सर नफी में हिलाया था। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। जोया, बात सुनो। इसके कमरे से बाहर निकलते कदम रुके थे। जोया ने मुड़कर इसको सवाली नजरों से देखा। पैकिंग कर लेना। इसकी बात सुनकर जोया ने हैरत से देखा था। हम जा रहे हैं। जोया की बात पर फारस ने सर इस बात में हिलाया। लेकिन कहाँ? फारस ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने करीब किया था। मुझे पता है सारा दिन परेशान हो रही होगी, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका गाल तक तो पाते हुए फारस से वॉशरूम में चला गया था। वो जब भी रेहान की तरफ हाथ बढ़ाती हुई अपना हाथ जोया के अंदर
ज़ोया के अंदर छुपा लेता। तंग आकर महानूर ने इसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया था। जिस पर इसका बाजा शुरू हो चुका था। इसे रोते देखकर अरहाम ने इसे नरमी से अपनी गोद में लिया था। ये बात अरहाम भी जानता था कि रेहान महानूर से ज़्यादा ज़ोया से अटैच था। वो ज़्यादातर ज़ोया के पास ही रहता था। आज वो सबसे अलविदाई कलमात कहकर इस घर से जा रहे थे और इसी बात पर अरहाम का दिल उदास हो रहा था। दिल कह रहा था कि वो रोक लो, लेकिन वो जानता था कि फारस अब कभी नहीं रुकेगा। इसके माँ बाप ने फारस को बहुत लाड से पाला था। उन्होंने कभी फारस को इसमें कोई फ़र्क नहीं किया था, तो भला वो कैसे इन्हें घर से निकाल सकता है। सपने से मिलकर वो दोनों इस घर को छोड़कर जा चुके थे। फारस ने अरहाम को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, ना ही अरहाम ने जानना ज़रूरी समझा था। ज़ोया हैरत से हर तरफ देख रही थी। फारस से एक फ्लैट में ले आया था। 3 कमरों का वो शानदार फ्लैट था। कैसा लगा हमारा नया घर? फारस ने इसके करीब आकर कहा था। बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने ये कब लिया? जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने ये तभी सोच लिया था तुम्हें हमेशा उस घर में नहीं रखूंगा। ऐसा घर दूंगा जो सच में तुम्हारा अपना घर हो, तुम्हारे शौहर ने बनाया हो। और फिर पैसे जमा करके मैंने फ्लैट जब खरीदा था। खाला और अंकल जब उम्र पर जा रहे थे तो तब खरीदा, तो सोचा जब वो वापस आएंगे तो उन्हें बता दूंगा, दिखाऊंगा कि इनके बेटे ने अपनी मेहनत से घर बनाया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब हो जाएगा। इनके जिक्र पर फास की आंखें नम हुई थी। ज़ोया ने इसका हाथ थाम कर इसे तसल्ली दी। फास ने अपनी आंख से निकला आंसू साफ करके इसे गले से लगा लिया था। उसे घर की बाकी चीज़ों के बारे में बताने लगा। वो सारा घर पहले ही सेट करवा चुका था। वो आज फिर इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था और उम्मीद थी कि आज कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। लेकिन एक परेशानी भी थी कि अगर इसे जॉब ना मिली तो क्या होगा। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी इसके करीब आने लगी थी। हवा से छल हो गई थी। इसके कुछ भी सोचने या करने से पहले ही कोई तेज़ी से इसे दूसरी तरफ खींच चुका था। पागल तो नहीं हो गए, क्या अपने मरने का इंतजार कर रहे थे? खींचने वाले ने गुस्से से इसे घूरते हुए कहा था, जबकि वो तो हैरत से इसे देख रहा था। अकबर तुम यहाँ? फारस ने हैरत से इसे देखते हुए कहा। अकबर इसका इकलौता बेहतरीन दोस्त था जिससे आज वो साल बाद मिल रहा था। हाँ, मैं कौन से सोचों में घूमते जो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी, बस वो सोच रहा था, ध्यान ही नहीं किया। परेशान लग रहे हो फारस? अकबर ने इसके चेहरे पर मौजूद परेशानी को देखते हुए पूछा था, जिसका फारस ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो बैठ कर बात करते हैं। अपनी कार में बिठाकर अकबर कुछ फासले पर बने रेस्टोरेंट में ले गया था। अब बताओ क्या बात है? ऑर्डर देने के बाद अकबर ने इसे देखते हुए पूछा, जिस पर फारस ने अपनी परेशानी बता दी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारे आइडियाज़ कमाल के होते हैं, तो क्या कहते हैं? अकबर को जोश अंदाज में देखते बोला था। तो मुझे कल तक जवाब दे देना, अच्छे से सोच के। इसे सोचों में देखकर अकबर ने मुखातिब किया था। इसकी बात पर फारस ने सर को हल्के से जंबिश दी थी। कारोबार में मुसलसल नुकसान होने की वजह से बशीर ने से बैंक से लोन लेने का मशवरा दिया था, जो कि घर वापसी पर आते ही वो सारा पैसा चोरी हो चुका था। और इसे ये बात भी बहुत जल्द पता चल चुकी थी कि सब बशीर ने किया है। अरहाम इसे हर जगह ढूंढ चुका था कि जहाँ वो हो सकता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिल रहा था। और अब उस घर के लोन की वजह से अपना ये घर छोड़ना पड़ रहा था। सबसे पहला ख्याल इसे यही आया था कैसे इसने फारस को घर से निकाला। उसी वजह से इसे अब अपना ये यादों से भरा घर छोड़ना पड़ा है। महानूर हैरत से इस घर को देख रही थी जिसमें अरहाम इसे लाया था। ये किसका घर है? महानूर ने हैरत से इस घर को देखते हुए पूछा। इस घर में 4 कमरे थे, लेकिन जो बहुत छोटे थे। साथ एक छोटा सा किचन लॉन्च भी था। ये भी पापा का ही घर है। पहले हम यहीं रहते थे। जब मैं चंद साल का था तो पापा ने ये घर छोड़ दिया था, लेकिन वो इसकी सफाई बाकायदगी से करवाते थे। अंदर दाखिल होकर अरहाम ने तफसील से बताया था। मैं इस घर में नहीं रह सकती अरहाम। सॉरी महानूर, अभी के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा। यहाँ की सफाई का उनको पता है। महानूर ने नाक पे चढ़ाकर तनकीदी निगाह इस घर पर डाली थी। मामा घर की मुलाजमा को साथ लाकर हर महीने यहाँ की सफाई करवाती थी, तो तुम इस मुलाजमा को बता देना और मेरा कमरा बता दो। सॉरी महानूर, लेकिन मैं अभी मुलाजमा को अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ वक्त के लिए तुम्हें ही सब संभालना होगा। अरहाम की बात में महानूर ने मुँह चुका के से देखा था। तुम जानते हो ना मैं ये सब काम नहीं करती, लेकिन अब ये सब करने तुम्हें ही पड़ेंगे और तुम्हें ही सब संभालना होगा महानूर। अरहाम ने नर्म लहजे में कहा था। ये कहो ना कि फ्री की मुलाजमा चाहिए। गुस्से में कहती हुई वहाँ से जा चुकी थी, जबकि अरहाम परेशानी से वहीं सोफे पर बैठ गया था। सारा दिन ख्वार होने के बावजूद भी इसे कोई काम नहीं मिलता। जो दोस्त थे वो बुरा वक्त आते ही छोड़ चुके थे। ऊपर से महानूर का रवैया से मजीद परेशान करता था। जब से वो यहाँ आए थे हर रोज़ इनकी लड़ाई होती थी। कभी वो चुप कर जाता था, कभी तंग आकर बहस करने लग जाता। शाहिद साहब हमेशा से यही कहते थे कि वो उनके साथ मिलकर काम में हाथ बटाए और काम सीख ले, ताकि कल को अपने किसी कोई मसला ना हो। लेकिन वो हमेशा इनकी बात को हंसी में उड़ा देता था। लेकिन अब इसे सब सोच कर पछतावा हो रहा था। घर वापस आकर वो खुद ही अपने आप को हल्का फुल्का बना लेता। महानूर हमेशा रेहान को फीडर पिलाकर अपनी जान छुड़वा लेती थी। इससे कुछ बनाना आता नहीं था, ये बात रेहान भी जानता था। इसलिए कभी कभी बाहर से ले आता था ताकि वो आराम से खाना खा ले। लेकिन आगे से इसे यही जवाब मिलता कि वो खा चुकी है। एक जगह से जॉब मिली थी, महीने की 17,000 सैलरी थी, लेकिन अभी इसके लिए वो भी बहुत थे। लेकिन जहन में ही बात घूमती रही कि वो जो हमेशा फारस की 50,000 की सैलरी का मजाक बनाता था, आज खुद 17,000 कमा रहा था। वो रोज़ रात को देर से आता था, लेकिन आज वो ज़्यादा थकावट की वजह से अपना सारा काम जल्दी ख़त्म करके वो घर आ चुका था। लेकिन घर पर ताला देकर इसे हैरत हुई थी। महानूर के पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी, जो कि अरहाम ने ही से दी थी कि कभी अपने वहाँ
अम्मी या कहीं और जाना चाहे तो इसके पास भी चाबी होनी चाहिए। और इस वक्त भी अरहाम को ये लगा कि किसी काम से यहाँ कुलसूम बेगम की तरफ गई हो। किसने ये सोचा था कि फ़ोन करके वो मानूर से पूछ लेगा, लेकिन घर में कदम रखने से पहले इसकी पड़ोसन नरगिस ने से आवाज़ दी। वो एक नहायत नरम दिल और नफीस खातून थी। इनके 2 बच्चे थे और रेहान को भी वो अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन इस वक्त इनकी गोद में मौजूद रेहान को वो हैरत से देख रहा था। इसलिए तो ये लगा था कि रेहान महानूर के साथ है। अच्छा हुआ बेटा तुम वहाँ के। मैं यही सोच रही थी कि रेहान को कहाँ छोड़ूं। वो मेरी बहन के बेटा हुआ है ना, तो मुझे वहाँ जाना है, वरना मैं इसे संभाल लेती। रेहान को इसकी गोद में देखकर वो इसे तफसील बताने लगी थी। लेकिन ये आपके पास क्यों है? महानूर कहाँ है? क्या आपको बताकर गई है? अरहाम परेशानी से इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा था। नहीं, वो मुझे बताकर नहीं गई, ये तो काफ़ी दिनों से मेरे पास ही रह रहा है। महानूर दोपहर को इसे हमारे पास छोड़ जाती है और कहती है किसी ज़रूरी काम से जा रही है, और बाद में वो तैयार होकर कहीं चली जाती है। इसे तफसील बताकर वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वो तो हैरत से इनकी बातों को सोच रहा था। वो काफ़ी दिनों से महानूर का अजीब रवैया महसूस कर रहा था, लेकिन इसे ये लगा कि इन हालात की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। लेकिन बात कुछ और थी, जिसकी वजह से वो हर हाल में वो बात जानना चाहता था। घर में दाखिल होते ही इसकी पहली नज़र हाँ पर पड़ी, जो झुके सर के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके सामने वो छोटी सी टेबल पर वो गिफ्ट पड़े हुए थे जो महानूर को मिले थे। इन्हें देखकर एक पल का तो वो घबरा चुकी थी, लेकिन फिर जल्दी अपने तासुरात को ठीक करके इसकी तरफ बढ़ी थी। तुम कब आए? महानूर ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी और हम अपनी सुर्ख निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखने लगा था। कहाँ थी तुम? इसके सवाल पर महानूर एक पल के लिए गड़बड़ा सी गई थी। मैं दोस्त के साथ थी। इतने दिनों से तुम रेहान को नरगसबाजी के बाद छोड़कर कौन सी दोस्त से मिलने जा रही है? और कौन सी दोस्त है तुम्हारी जो इतने महंगे तोहफे तुम्हें दे रही है? अरहाम ने टेबल पर मौजूद चीज़ों को देखते हुए पूछा। जब तुम सारी बात समझ चुके हो तो फिर इस तरह पूछने का क्या मकसद है? मतलब साफ है अरहाम, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इन रोनों से, इस गुर्बत से। मतलब मेरा बुरा वक्त आते ही तुम बेजार हो गई हो। जब मेरे पास सब कुछ था तो तुम मरती थी मुझ पर, और बुरा वक्त आते ही तुमने अपनी औकात दिखा दी। अरहाम गुस्से से देखते हुए बोला था। हाँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी यही नौटंकी देखती रहूँ या तुम्हारे इस बेटे को पालने में गुजार दूँ। महानूर ने गुस्से से रेहान की तरफ देखते हुए कहा था। महानूर, मैंने कितनी मोहब्बत की तुमसे। लहजे में बेबसी थी। बस कर दो, मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मोहब्बत है मुझसे। तुम्हें सिर्फ मेरी खूबसूरती से मतलब था। हाँ, मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे शादी की थी, लेकिन निकाह जैसे बंधन में बंध कर मैं मोहब्बत कर चुका था। लेकिन तुमने क्या किया? जहाँ पैसा देखा इस तरफ चली गई। तुमसे लाख दर्जा अच्छी ज़ोया है, जो इतने बुरे हालात में भी फार्स के साथ खड़ी रही। अगर इतनी अच्छी थी तो इससे शादी कर लेते। हाँ, यही गलती हुई मेरी, जिसकी सज़ा मुझे तुम्हारी सूरत में मिल रही है। पछता रहा हूँ। ज़ोया को छोड़कर तुमने जब अपना लिया, अपनी लड़ाई में इन दोनों को ये परवाह भी ना थी कि इनकी आवाज़ें दूसरे घरों में जा रही हैं और इनका मासूम बेटा ये सब देखते हुए सहम रहा है। आराम जानता था वो महानूर की गुस्से की तेज़ है, इसलिए इसे नरमी से समझाने लगा। लेकिन महानूर के ऊपर जिद सवार थे। तो मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो महानूर। मैं आज तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। रोंदी हुई आवाज़ में अपनी पहली मोहब्बत को खुद से अलग कर चुका था, जिसे सुनकर महानूर के चेहरे पर दुख के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि सब सुनकर तो जैसे पुरसकून हुई थी। बिना कुछ कहे अपना जरूरी सामान लेकर इस घर से जा चुकी थी। इसे जाते हुए अपने घर बेटे का भी ख्याल नहीं था, इसलिए तो आज अरहान के साथ साथ अपने बेटे से भी जान छोड़ के चुकी थी। इसके जाते अरहान शिकस्ता कदमों से वहीं बैठ गया था। आंसू लगातार इसकी आंखों से बह रहे थे। जिंदगी का हर वाक़या इसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। आज जैसे हर चीज़ पर वो पछता रहा था। माँ की नाफरमानी करके ज़ोया को अपना साथी ना बनाकर, महानूर को अपना साथी बनाकर इसने नज़र उठाकर अपने रोते हुए बेटे को देखा। सख्ती से इसे गले लगाकर रोने लगा था। अरहाम से यतीम खाने में छोड़कर आ चुका था। वहाँ से वापस आकर न जाने कितनी देरी वो बैठा रोता रहा था। कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार रेहान का चेहरा इसके सामने घूम रहा था। इसे अपना आप बदकिस्मत लग रहा था, जिसकी औलाद होते हुए भी इसके साथ नहीं थी। लेकिन इसे पता था कि इसके साथ रहकर भी रेहान को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इसके मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। महानूर हैरत से इसे देख रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? ज़ुबैर लहजे में साफ पर लड़खड़ाहट थी। 2 बार कह देता हूँ, 2 दिन में ये घर खाली कर देना, वरना जब मालिक मकान आएगा तो मुझसे शिकायत मत करना। ना कि मैंने तुम्हें बताया। ज़ुबैर कहते हुए वहाँ मौजूद अपना सामान बैग में रखने लगा था। लेकिन तुमने कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो ये किसका घर था? मैंने चंद दिन के लिए घर रेंट पर लिया था। अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। मैंने तो अपना बैग ही पैक नहीं किया। महानूर ने परेशानी से देखते हुए कहा। तो आराम से करना भी 2 दिन बाकी हैं। क्या मतलब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तो क्या तुम्हें साथ लेकर जाऊँ? ज़ुबैर ने अपनी बुआ छुपा के से देखा था। ज़ाहिर है मैं बीवी हूँ तुम्हारी। इसकी बात सुनकर ज़ुबैर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुई थी। बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि मेरा तुम्हारा कोई निकाह नहीं हुआ। वो जो निकाह था वो सिर्फ झूठ था। इसके इंकशाफ महानूर फटी आंखों से देख रही थी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि हमारा कोई निकाह नहीं हुआ। जो हुआ वो नकली निकाह था। इसके बाद सुनकर महानूर का सफ़ेद हाथ उठा, जिसे ज़ुबैर बीच में ही थाम चुका था। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे। मैंने तुम्हारी खातिर अरहाम को भी छोड़ दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया? महानूर ने चीखकर इसका गिरबान पकड़ लिया था। इसकी हरकत पर ज़ुबैर ने गुस्से से देखा था। उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। और मैडम, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, तारीफ मैंने तुम्हारी खूबसूरती की हमेशा की है, और जो अरहाम को छोड़ने की बात तुमने की है ना, मेरी वजह से नहीं, तुमने इसे लूट चुका था।
तुम ने इसे लूट चुका था, इसलिए तुम मेरे पास आई हो। तुमने मेरी इज्जत, मेरी ज़िंदगी से बर्बाद कर दिया। धोखेबाज। महानूर से अपना हाथ इसके चेहरे पर पड़ा था। इसके बड़े नाखून की वजह से ज़ुबैर के चेहरे पर निशान लग चुके थे। ज़ुबैर ने खून की बूंद को अपनी उंगली से साफ किया और अपना भारी हाथ इसके नाजुक गाल पर दे मारा था, जिससे महानूर पीछे की तरफ जा गिरी थी। मैंने तुम्हारी कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। तुम्हें पैसा चाहिए था और मुझे बस तुम्हारी खूबसूरती से मतलब था। मेरा मतलब अब पूरा हो चुका है। अब तुम जाकर किसी और पैसे वाले को ढूंढो। जितनी खूबसूरत तुम हो, कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा। ज़ुबैर कहते हुए इसके चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगा था, जिसे महानूर ने गुस्से और नफरत से झटक दिया था। तुम्हें पता है महानूर, तुम जैसी औरतों को मर्द सिर्फ एक ही नज़र से देखता है। अगर मैं तुम्हें छूता था तो तुमने कभी मुझे नहीं रोका, बल्कि तुम और अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती थी। तो जब तुम खुद मेरे तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी तो मैं अपने कदम क्यों रोकता? एक बार ख्याल आया था कि तुम मेरे खातिर राम को छोड़ रही हो तो मैं तुम्हें अपना लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुम आज मेरे लिए राम को छोड़ रही हो तो कल को किसी और के लिए भी छोड़ सकती हो। ज़ुबैर ने अपने बैग से कई नीले नोट निकाल कर इसके सामने रख दिए थे। तुम्हें यही चाहिए था ना महानूर? तो ले लो। ज़ुबैर उठ कर वहाँ से जा चुका था और महानूर की नजरें बस इन बिखरे हुए नोटों पर थीं। ये क्या हरकत है मिस्टर अरहाम? आप जानते हैं कि कल कितनी अहम मीटिंग थी और आप फिर भी ऑफिस नहीं आए। सर इसे गुस्से से देखते हुए कह रहे थे, जबकि वो बस नजर झुकाए खड़ा था। सॉरी सर, कल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसकी बात पर सर ने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। वो भी जानते थे कि अरहाम एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान है। सर ने इसके चेहरे की तरफ देखा। बीमार तो वो अभी भी लग रहा था। मिस्टर फास हमारे नए पार्टनर हैं। कल आप इनसे मिल नहीं पाए थे। ये फाइल लीजिए, इन पर साइन चाहिए। इनके घर जाकर इन पर साइन ले लीजिएगा। सर ने एक नीली फाइल से थमाते हुए कहा था, जिसे थाम कर वो उनके ऑफिस रूम से निकल गया था। नीचे ऑफिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और राम इसमें बैठ गया था। ये गाड़ी ऑफिस की थी, जो कि वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन वो भी इस गाड़ी में सिर्फ ऑफिस के काम के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी। वरना इसके पास तो सिर्फ बाइक थी, जो कि फास्ट घर से जाते वक्त यहीं छोड़ गया था। और कल तक वो फास्ट की जिस बाइक का मजाक बनाता था, वो खुद भी वही इस्तेमाल कर रहा था। जरूरत के तहत वो अपनी गाड़ी को बेच चुका था। अपनी निगाहें इधर-उधर दौड़ाकर वो शानदार से डाइनिंग रूम को देख रहा था, जिसमें चंद सेकंड पहले मुलाजिम इसे बैठाकर गए थे। फास को स्नेह की आवाज़ आने की इत्तला देने के बाद चला गया था। नज़र दौड़ाते हुए इसे अपने पैर के करीब कोई चीज़ महसूस हुई थी। अरहाम ने ज़मीन पर पड़ी बॉल को देखकर अपने सामने 2 पौने वाली इस छोटी सी बच्ची को, जो आई तो शायद बॉल लेने थी, लेकिन इस अजनबी को देखकर वहीं रुकी थी। अरहाम ने शुक्र से बॉल को उठाकर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा दिया था। इसका सारा ध्यान इस मासूम सी बच्ची पर था, जो कि अरहाम को बहुत प्यारी लग रही थी। अलीज़ा, जानी पहचानी आवाज़ पर अरहाम ने मुड़कर सामने देखा, जहाँ हैरत से इसका मुंह ही खुल गया था। आसमान इस पर टूट पड़ा था। दूसरी तरफ जोया की भी हैरत बचा दी और उसे देखकर अरहाम को समझ नहीं आ रहा था वो पहले भी इतनी खूबसूरत थी या आज उसे गौर से देख रहा था। दोनों शाने पर अच्छी तरह से दुपट्टा फैलाया हुआ था। सिल्की बाल खुले हुए थे। अरहाम को देखते ही अपनी हैरत पर काबू पाकर दुपट्टा सर पर जमा लिया था, लेकिन इस वक्त अरहाम की मौजूदगी का इल्म न था। वो सिर्फ जोया को देखने में मसरूफ था, जो फास्ट भी वहाँ आ गया था। ये तो पता था कि वो फास्ट नामी शख्स से मिलने जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो फास्ट इसका अपना भाई होगा। इसे फास को देखकर भी हैरत हुई थी, लेकिन इससे ज़्यादा हैरत इसे फास के साथ खड़े इस बच्चे पर थी, जिसका हाथ फास ने थामा हुआ था। वो रेहान था, इसका अपना रेहान। भला वो कैसे इस बच्चे को बोल सकता था तुम्हारा रेहान ही है? इसकी हैरत ज़दा नज़रों को देखते हुए फास ने कहा। अरहाम ने आगे बढ़कर फौरन रेहान को अपनी गोद में उठा लिया था, सख्ती से खून में भींच लिया। आंसू रवानगी से इसकी आंखों से बह रहे थे। इतनी सख्त पकड़ पर रेहान अपना आप चलवाते हुए रो रहा था। इसे इस तरह रोते देखकर जोया ने रेहान को उसकी गोद से लेकर अपने करीब किया था। तुम्हारे साथ? अरहाम ने फास को देखते हुए पूछा था। जहाँ तुमने इसे छोड़ा था, मुझे वहीं इससे मिला। घर पर गया तो तुम्हारे, लेकिन पता चला तुम वो घर से कर चुके हो। तो तुमने रेहान को वहाँ क्यों छोड़ा? और महानूर कहाँ है? अरहाम के चेहरे पर मौजूद कर वो साफ देख सकता था। इसके पूछने पर अरहाम से हर बात बता चुका था और अपने हर बुरे रवैये के लिए माजरत भी कर चुका था। इसकी बात सुनकर जोया फास दोनों को हैरत हुई थी। जोया का सब झूठ लग रहा था। भला महानूर ऐसा कैसे कर सकती है? और इसके घर वाले तो जो इतने वक्त से महानूर को सोचकर परेशान थे, इन्हें ये भी परेशानी थी कि अरहाम ने भी इतने वक्त से इनसे कोई रब्ता नहीं किया था। इन्हें वो क्या बताएगी? पहले तो इन्हें हमेशा ये तसल्ली रही थी कि अरहाम के साथ है, लेकिन अब वो कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता था। ऑफिस से वापस आते इसकी नज़र गार्डन में खेलते हुए अरहाम पर गिरी, जो हर चीज़ से बेनियाज जाने किन सोचों में गुम था। फास ने इसे ज़बरदस्त अपने साथ रख चुका था। इसके लाख मना करने के बावजूद इसका कहना था कि इसके होते हुए इसका भाई अकेला नहीं रहेगा। और अरहाम की जॉब दूसरी जगह लगवा चुका था, जो कि पहले से ज़्यादा बेहतर थी। और अरहाम को भी एक नया काम शुरू करवा देना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचा कि पहले इससे वो काम सीखना चाहिए। इसने यही देखा था कि अरहाम सोचों में गुम ही रहता था। खाना भी वो बुराई नाम का ही खाता था, लेकिन अब रेहान इसे काफ़ी
مانوس ہو چکا تھا، اور دوسری طرف ارحام کا اسے مزید یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ گھر پر وہ جتنا بھی وقت گزارتا زویا سے اس کا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی کہتی تھی، لیکن اسے اب پچھتاوا ہوتا تھا، کاش اپنی ماں کی بات مان لیتا تو آج زویا اس کی بیوی ہوتی۔ جس طرح فارس کے برے وقت میں وہ اس کے ساتھ ہی، اسی طرح اس کے بھی برے وقت میں وہ ساتھ ہوتی۔ جس طرح فارس اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زویا کو دیکھ کر اسے کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اسے بس اپنی ماں کا الفاظ یاد آتے تھے۔ وہ سب سوچ کر مزید پچھتاوا بڑھتا جاتا تھا، لیکن اب وہ سوچ چکا تھا کہ مزید یہاں نہیں رہے گا۔ اپنے بیٹے کو لے کر وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اپنی سوچوں میں گم، اسے اپنے برابر میں بیٹھے فارس کی موجودگی کا علم بھی نہ ہوا تھا۔ ہوش تو اسے فارس کی بات سن کر لائی تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ فارس، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں کل ایران کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر فارس گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ارحام، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زویا میری ہی ہے اور میری ہی رہے گی۔ اس کی بات پر ارحام نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا چہرہ صاف تمہارے اندر کا حال بتاتا ہے۔ اس کی بات سن کر ارحام نے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ میری نیت جانتے ہو پھر بھی مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میری نیت جانتے ہوئے پھر بھی مجھے اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے میرے بھائی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں شروع سے جانتا تھا کہ خالہ جانی نے زویا کو تمہارے لیے پسند کیا تھا، لیکن تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ویسی خوبصورتی نہیں تھی جو ماہنور کے پاس تھی، اور بس اسی بات کا تمہیں اس دیکھ کر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ارحام، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کم سے کم اس وقت تو بالکل بھی نہیں جس وقت میری شادی ہوئی، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا ہر لڑکی کی خواہشیں ہوتی ہیں جو شاید میں اس وقت پورا نہ کر سکوں، لیکن پھر میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور مجھے تب اندازہ ہوا کہ زویا ہر لڑکی جیسی نہیں ہے، وہ مختلف ہے، اور میں اپنے آپ کو دنیا کو سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں جس کے پاس زویا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنی باتوں کا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ زویا کی کزن ہے اور زویا چاہتی ہے کہ تم اسے ایک بار دیکھ لو۔ ارحام نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو یار؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فارس، میں اب اس سب کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا۔ ارحام نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارحام، جو ہو چکا ہے اسے بھول جا، اپنی زندگی جیو بھائی۔ بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا مخلصانہ مشورہ ہے، پہلے تم نے زویا کو چھوڑ دیا اور آج اس بات کو یاد کر کے پچھتاتے ہو۔ کاش آج زویا تمہاری ساتھی ہوتی، لیکن زویا کو اللہ نے میرے نصیب میں ڈال دیا، جس کے لیے میں اس پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ اب فیصلہ کرنا ہے، بعد میں تمہیں اب ایسا نہ ہو کہ پھر سے پچھتاوا ہو۔ اپنی بات کہہ کر فارس اسے گہری سوچوں میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یار انم، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ارحام نے کمرے میں داخل ہوتے ہی انم سے کہا تھا، جو اتنی دیر سے اسے 5 منٹ کا کہہ رہی تھی، اور یہ سب سنتی ہی وہ تقریباً 20 منٹ لگا چکی تھی۔ آ رہی ہوں ارحم، تھوڑا صبر بھی کر لیا کرے، انم نے اپنی چادر درست کرتے ہوئے کہا تھا، جسے دیکھ کر ارحام کو اس پر ٹوٹ کا پیار آیا تھا۔ اس کے بڑے بڑے وجود کو اپنی نظروں کے سامنے لیتے ہوئے ارحام نے قریب جا کے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اس کی بڑھتی اتساہیت کو دیکھ کر انم نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا، جس پر ارحام نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر اپنے ساتھ لے کر باہر کی جانب چل دیا۔ زندگی حسین ہو گئی تھی، اور اپنی زندگی کے لیے ارحام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ انم ایک بہت اچھی لڑکی تھی جو کہ سب کا خیال رکھتی تھی، اور ریان کو ہمیشہ اس نے اپنی ساری اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے، دیکھو تم آ گئے۔ اور جیسے اس درگاہ سے باہر نکلنے لگا، کسی نے پیچھے زور سے اس کی شرٹ پکڑ لی تھی۔ ارحام نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا، اور دیکھتے ہی اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ وہ ماہنور تھی، ہمیشہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھنے والی ماہنور آج اس حال میں تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرے پر جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے تھے، سفید رنگ جگہ جگہ سے سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے، دیکھو تم آ گئے، اب مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کا گریبان پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ لوگوں نے آگے بڑھ کے اسے خود سے دور کر رہے تھے، لیکن جن سے وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ارحام کو اپنے حواس شل ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اپنے قدم اٹھا کر باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ ذہن کے پردے پر ماہنور کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان ماہنور کی طرف تھا۔ ہوش تو اسے انم کے چلانے کی آواز پر لائی تھی۔ نظر سامنے کی طرف اٹھی، جہاں ٹرک کنی کی طرف آ رہا تھا۔ ارحام نے فوراً گاڑی کا رخ دوسری طرف کر لیا، گہرا سانس لے کر گھبرائی ہوئی انم کو دیکھا۔ ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکال کے اس کے لبوں سے لگائی تھی۔ سب ٹھیک ہے میری جان، ارحام نے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سائے میں لیا تھا۔ ایک بار پھر سے ماہنور کا سراپا اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا۔ اس نے ایک نظر اپنے کندھے سے لگی انم کو دیکھا۔ وہ بھلا کیوں اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ جس بھی حال میں ہو، اسے سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اچھا ہوا جو ماہنور کی حقیقت وقت پر ہی کھل گئی تھی، جس کے بعد وہ بہت ٹوٹ چکا تھا، لیکن انم نے اس کی زندگی میں آ کر خوشیوں کے رنگ بڑھ دیے تھے۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی کم تھا۔ خدا نے اسے انم جیسا تحفہ دیا، اور ارحام نے ہولے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ابھی یہ الٰہ ربکما تکذبان، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے آپ کو ان لوگوں سے چھڑوا کر وہ اس
गाड़ी के पीछे भागने लगी जिसमें राम को इसने बैठते हुए देखा था, लेकिन सामने साथी तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से वो दूसरी तरफ जा गिरी थी। लोग इर्द गिर्द जमा हो गए थे, इसकी आंखें आस्ते आस्ते बंद हो चुकी थी। उसे ये लग रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हर चीज़ का जो इससे पछतावा था वो भी अब इसकी जान छोड़ देगा। आँख खुलने पर इसने अपने आप को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। आंसू रवानगी से इसकी आंखों से बहने लगे थे, यानी अभी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई थी, अभी ये ज़िंदगी बाकी थी जिसमें पछताना था। फार्स को लॉन में देखकर वो चाय की ट्रे हाथ में पकड़े इसी तरफ चली आई थी जहाँ वो मुस्कुराते हुए बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, जिसमें इसकी बेटी लीज़ा, बेटा महात और रेयान मिलकर खेल रहे थे। क्या देख रहे हैं? फार्स ज़ोया ने ट्रे टेबल पर रखते हुए पूछा था। देख रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में ऐसी कौन सी नेकी की जिसका नाम अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी सूरत में दिया है। ये बात तो मैं भी हमेशा कहती हूँ कि आप मेरी किसी नेकी का सिला है। ज़ोया की बात पर इसने दिलकशी से मुस्कुराते हुए इसके हाथ थाम कर इसके हाथ की बुर्स पर अपने लब रख दिए थे। सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र में गुजार देना चाहता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो ज़ोया, तुम मेरे लिए खुदा का तोहफ़ा हो। मैं सारी ज़िंदगी खुदा का शुक्र अदा करता रहूँगा। इस पाक ज़ात ने मुझे तुम जैसे कीमती तोहफे से नवाजा। इसके लहजे से साफ प्यार झलक रहा था। ज़ोया ने अपनी नम आंखें उठाकर इसे देखा था और हौले से इसकी बेदाग पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। अब यही है ला रब्बी गुमा तो ज़ीबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। खत्म शुद। नावल का नाम है पछतावा और इसके राइटर हैं झांसी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। तो अच्छा था, इसमें एक सबक दिया हुआ था कि कभी भी अपनी खूबसूरती पे गरूर नहीं करना चाहिए और पैसे के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। आप लोग जितना पैसे के पीछे भागेंगे पैसा आपसे दूर भागेगा। ये मैंने चीज़ नोट की है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने चीज़ नोट की हुई है कि जो लोग, मैंने देखे भी हैं काफ़ी लोग, कि जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं ना, पैसा उनसे दूर जाता है, और जो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते ना, पैसा खुद उनके पास चल के आता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसे मैंने खुद भी देखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसे आजमा सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। बाकी आप लोग को नावल कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।